Imam again and again so as to act upon it. Karbala was a day of victory for the righteous over the oppressors, the day of a revolution that will inshallah always light a fire in the hearts of the believers. Now it is up to us how to keep this flame ignited. Or better yet, let us fuel the flames to the extent that it becomes a blaze and sets our souls on fire so that we are able to completely transform ourselves. Well, we can start doing that by learning and acting upon our faith. We can analyze the virtues of a true believer in the light of Quran and Hadith and start observing those virtues. The topic on which I am going to talk about today is one such salient future virtue. That is steadfastness and patience in Islam. Well, the Holy Quran and the words of the Holy Prophets and Imams have put much emphasis on this issue. The word patience, as understood from the Quranic verses and traditions, means steadfastness and not bearing ill luck nor submission to unpalatable circumstances. Quran says on patience, be sure, we shall test you with something of fear and hunger, some loss in goods, lives, and the fruits of your toil. But give glad tidings to those who patiently persevere. Those who say when afflicted with calamity, to Allah we belong and to Him is our return. They are those on whom descend blessings from their Lord and mercy. They are the ones who receive kindness. Surah Asr, it is said, verily, man is in loss except such as have faith and do righteous deeds, and join together in the mutual enjoying of truth, and of patience and constancy. Hereof, the world is a torrid place to live in today, where constant tragedies and setbacks are faced by the people. Like the people from the past, we face old problems as well as new distractions that make us waver in our faith and cast doubts on our religion. But as Muslims, we should not let our emotions get the better of us. It is certainly difficult for a person to look at the world today and not feel helpless and sad. But believers are called upon to put their trust in the Lord and not to fall into despair or hopelessness. We must continue to do what Allah has called us to do. Let us put our trust in Him, perform the deeds, and stand as witnesses for justice and truth. So, we learn from the narrations of the Prophet that patience is of three sorts. Our Holy Prophet has said, Salawat. Patience is of three kinds: forbearance in time of trouble, steadfastness for obedience, and restraining oneself from sin. Steadfastness itself, the Holy Quran uses the word mustaqim. That is from istiqamat, meaning firmness, when it says, Ihdina as-siratal mustaqim. According to the Holy Quran, patience is a virtue that is always found in a true believer. Quran says, "Oh, you who believe, persevere in patience and constancy." Why insist perseverance, strengthen each other, and keep fire and will prosper. Another important aspect of being patient is how we perceive it to be. Imam Sadiq alayhi salam said, verily, a slave has own place in status in the sight of Allah, where he does not reach to his deeds. Then Allah puts him in some trouble either physically or monetarily, or in a family-related matter. Thereafter, through patience, he reaches that status. So it's sure that if we view the calamities as opportunities rather than bad faith, then it will be easier for us to adopt patience. Okay, another very important part of a believer's life is patiently waiting for the Imam of our time. Here, patience means more than just waiting. We have to act in accordance with our Islamic teachings and always be prepared for his arrival, and keep on carrying on the right path till the day we find him. Amir al-Mu'minin said, the best worship is patience, silence, and wait for the arrival of the Christ. So we arrive at the all important questions on how to cultivate patience. Some of the things we can do are frequent zikr, remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala.
There is no doubt that the zikr of Allah strengthens a woman's heart and provides him guidance and Allah's help to enjoy good and avoid evil. Zikr of Allah is primarily done through namaz, recitation of Quran, and dua supplications. Allah says, "Verily, in the remembrance of God, do hearts find rest." Also, we can learn and be obedient to our prophets and imams, because our prophets and infallible imams are the shining examples of patience, just as the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam displayed firmness in the face of propagation and fighting and struggle. His patience on the event of Taif is exemplary, where Allah was so pleased with him that he converted the people of Taif to believers. Also, it is a narration from Imam Sadiq that a free man is a free man under all circumstances. If he is in trouble, he is patient, calamities do not break him, even if he is imprisoned and overpowered and put in difficulties. Hence, imprisonment and slavery could not harm the honest Yusuf. Darkness and pride of wealth could not put him to loss until Allah made him messenger and defeated the nation because of him. Patience and forbearance like this, it always results in good, so be patient and tolerant so as to see its reward. Another important aspect is cleansing of our minds of doubts and evils so that we can be patient and steadfast. It is our duty not only to fulfill our religious obligations, but to crush any doubts and evils that arise in our hearts. For doubts are planted in hearts by Shaitan. This is a very famous saying of Imam Ali alayhi salam. Speaking with complete faith is better than praying in a state of doubt. But we should know that Islam encourages curiosity, and there is a difference between an intelligent question or posing of problems and casting of doubts. And for such issues, we have our scholars, Mirja, who we should consult them and accept their decisions. Okay, what are the advantages of practicing patience and steadfastness? There is no doubt that a great deal of reward awaits in the hereafter for the patient and steadfast woman. Quran says, "As for those who say our Lord is Allah, then continue in the right way. The angels descend upon them, saying, Fear not, nor be grieved, and receive good news of the garden which you were promised." Apart from that, patience endows us with invincible spirit so that mountains of difficulties do not hinder our resolve and objective. Patience always provides new motivation and energy, increases our capabilities in all aspects. Patience instills in us self-awareness and self-reliance, and this becomes a source of reliance and awareness of Allah. And a patient believer becomes more humble and grateful to Allah. As Quran says, "Verily with every difficulty there is love. Verily with every difficulty there is love." Last quality is the permanent victory and eternity for those who are patient and steadfast. Because no matter what the worldly outcome is, a believer who is steadfast and patient is rewarded in this world as well as hereafter with permanent victories. It might be that our struggles may not bear fruits immediately, but the reward is a promise of Allah which is certain to happen. As an example, let me quote the two most well-known events in our history of sacrifice, patience, and firmness for the cause of Allah. The sacrifice of Prophet Ibrahim of his son, and how he left his family in the desert on the command of Allah. Hazrat Ibrahim and his family showed great strength, patience, and conviction of belief, and were thus rewarded. So as the place that he, along with his son, built, was ordained our pilgrimage site. As well as in the remembrance of the sacrifice, Muslims observe every year. And of course, the sacrifice of Imam Hussein and his family and friends is the epitome of patience and steadfastness for standing against oppression and protecting Allah's deen. This event too has been permanently engraved in the hearts and minds of believers, as we observe the mourning of our Mazloom Imam every year. One of the victories of Imam's sacrifice is the believers who will always remember him. And the event of Karbala is stated by our dear Prophet Muhammad. To give you Fatma Zahra on the word of Allah. So dear listeners, we are the fruits of our Imam's struggle for justice and against oppression. And the burden of carrying on the message of Karbala is ours to bear.
And we can only succeed in doing justice to it when we vow to reform ourselves and become steadfast in doing good and refraining from evil, and be patient in times of distress and have complete faith in Allah subhanahu wa ta'ala. Thank you also. कल ऐलान करना था जो मुझसे रह गया। आज हम लोग हर साल की तरह आज की मजलिस खास तौर पे जो 10 दिन की अशराफ में है कबला जो भी मौलाना यहाँ पर आते हैं जो स्पीच 10 दिन देते हैं, हम कोशिश भी करते हैं कि आप लोग उसको सुने और आज के दिन कुछ हम हिस्सा महसूस करते हैं, मुख्तस करते हैं कि आपके जहन में अगर उन मजालिस को देखते हुए कोई सवाल आए हैं तो वो सवाल आप कबला से कर सकते हैं। आज इंशाल्लाह शुरू के जो कबला के ऊपर है कि कितने मिनट चलेगा या सवालों के ऊपर है कि 15 से 20 मिनट हम शुरू के लिए देंगे। आप लोगों के जहन में अगर कोई सवाल मजलिस से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर आए, कबला ने हर हमसे कहा कि जो भी हो आने दें, लेकिन जो भी आप लोगों के जहन में है कि हम कोशिश ये करते हैं कि जो टॉपिक हो उससे रिलेटेड हो या कोई भी सवाल कबला साहब अगर कर सके तो शुरू के मजलिस के 15-20 मिनट इंशाल्लाह सवाल जवाब का सिलसिला रहेगा। इसके अलावा कल सोइन की मजलिस 7:30 बजे यहाँ बर्पा होगी। तमाम मोमिन से दरख्वास्त है कि उसमें शिरकत फरमाएं। उसके बाद परसों यानी 19 और 20 मुहर्रम को यहाँ पर एक जनानी मजालिस भी बर्पा होंगी। तमाम मोमिनात से दरख्वास्त है कि उसमें भी शिरकत फरमाएं। और मोहम्मद एक गाड़ी है वो वैन निकालनी हो किसी सिलसिले में किसी साथ में अगर प्लीज मोहम्मद वाले मोहम्मद इसके अलावा कोई मजालिस यहाँ पर मजलिस की जारी है 16 मुहर्रम 17 और 18 मुहर्रम को जो 20, 21 और 22 नवंबर बनेगी, जिससे डॉक्टर मोहम्मद अली शुमाली जो हम से तशरीफ ला रहे हैं वो खिताब फरमाएंगे। तमाम मोमिन से दरख्वास्त है खास तौर पे यूथ से वो उन मजालिस में जरूर शिरकत फरमाएं, इसलिए कि वो हमारे पास पहली दफा आ रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे स्कॉलर हैं। आप लोग उनकी मजालिस से मुस्तफीद होंगे। आप तमाम मोमिन से दरख्वास्त है कि इन मजालिस में भी जरूर शिरकत फरमाएं। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ मौलाना सैयद सफी हैदर साहब से कि तशरीफ लाएं मजलिस से खिताब के लिए। और मोहम्मद वाले मोहम्मद तकबीर अल्लाहु अकबर तकबीर अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली या अली जिसके बाद भी हाजिर रहूंगा। आपको इंशाअल्लाह वक्त आपके पास होगा या फिर ऐसी जरूरत होगी तो सेशन उसके बाद भी रखा जा सकता है। जैसा मुनासिब समझे कि जल्दी क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू नहीं हो उसको छेड़ना है, मजलिस हो जाए इंशाअल्लाह उसके बाद मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि रहमल्लाहु मन क़रा अल-फातिहा। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين
سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد روي عن الصادقين عليهم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أحيني حياة محمد وذريته وأمتني مماتهم وتوفني على ملته واحشرني في زمرتهم ولا تفرق بيني وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شورا کے بعد کی جانے والی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے. ان کے اس دعا کے ان فکروں کو آپ اللہ کی خدمت میں روزانہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا رہا ہوں. جو مومن کی دل کی آرزو بھی ہونا چاہیے، مقصد حیات بھی ہونا چاہیے، اور ساری زندگی اس موضوع کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. پروردگار ہمیں محمد والے محمد جیسی زندگی عطا فرما اور جیسی موت دے گا. ہم جب اس دنیا سے جائیں تو ان کی ملت میں ہوں، ان کی امت میں ہوں، ان کے نظریات پر قائم ہوں، ان کے دین پر باقی ہوں، اور جب آخرت میں اٹھایا جائے تو ان کے گھروں میں ہم شامل کر کے اٹھائے جائیں، مشہور کیے جائیں. دنیا اور آخرت کسی بھی جگہ مالک پلک جھپکنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر کا فاصلہ بھی ہمارے اور ان کے درمیان نہ ہونے میں یہی لگائی ہے. عزیزوں، گفتگو روزانہ ہوتی رہی ہے. آپ اللہ کی خدمت میں زندگی، ہدایات و تعلیمات محمد والے محمد علیہ السلام کے عنوان سے ہم اور آپ زندگی جو بسر کرتے ہیں، جب باشعور منزل میں آتے ہیں زندگی کے، تو ہر صاحب عقل اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی ہدف اور نشانہ، ایم اور مقصد لے کے زندگی بسر کرتا ہے. مجھے یہ کرنا ہے، یہ زندگی کا مقصد یہ ہے. کوئی نہ کوئی نشانہ، کوئی نہ کوئی مقصد سامنے ہوتا ہے جس کے لیے آدمی زندگی بسر کرتا ہے. چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی مقصد حیات آدمی بنا لیتا ہے اور بڑے بڑے کاموں کو بھی مقصد حیات بناتا ہے. کوئی صرف اس کا ایک نشانہ ہوتا ہے، مجھے ملینر بننا ہے، مجھے ہماری آپ کی زبان میں بڑا آدمی بننا ہے. کسی کا نشانہ ہے ہمیں اسکول کھولنا ہے، کالج کھولنا ہے، اسپتال کھولنا ہے. ہم سب اپنے اپنے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، چھوٹا سے بچہ بھی کوئی نہ کوئی ایم اس کے دماغ میں بھی ہوتا ہے. اپنے بابا کو راضی کر کے ٹیلی فون کا یہ نیا ماڈل آیا ہے، سیل فون کو وہ لینا ہے. اور ہر زندگی میں مقصد حیات ہوتے ہیں، زندگی کے نشانے ہوتے ہیں جن کو سامنے رکھ کے انسان جیتا ہے. اس سلسلے میں اہل بیت علیہ السلام نے سارے انسانوں کی قسمیں بھی بتائی ہیں اور اس کے بعد یہ رہنمائی بھی کی ہے کہ ایک مومن کو اپنی زندگی کا مقصد کیا بنا کے زندگی بسر کرنا چاہیے. چھٹے امام حضرت جعفر صادق جملہ وارد ہوا ہے کہ مولا کائنات
अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इन्नल कुलूब सलासा, दिलों की 3 किस्में हैं। सारी जिंदगी जितने लोग हम देखें और हम अपनी जिंदगी के खुद मुख्तलिफ जो दौर गुजरते हैं, बचपन, नौजवानी, जवानी, अधेड़ों, फिर बुढ़ापा, जो हम बुढ़ापे की मंजिलों में आ चुके हैं, जो जवानी की मंजिलों में हैं, सब पीछे पलट के देखें तो हमने जो जिंदगी गुजारी है उसमें अलग अलग जमानों में, अलग अलग एज में, अलग अलग मौकों पर हमने कुछ न कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ मकसद जिंदगी के बनाए हैं जिनकी रोशनी में जिंदगी बसर की है और फैसले लिए हैं। उनको समेट के मौला 3 किस्मों में बताते हैं। इंसानों की 3 किस्में हो सकती हैं। इमाम ने फरमाया क़ल्बुन मशगूलुन बिद्दुनिया व क़ल्बुन मशगूलुन बिल-उक़बा व क़ल्बुन मशगूलुन बिल-मौला। सारी जिंदगी, सारे इंसान जो कुछ भी अपनी जिंदगी का निशाना बना ले कि मुझे ये करना है, मुझे यूं इस मकसद तक पहुंचना है, इस हद तक पहुंचना है, उनकी 3 किस्में बनती हैं। 2 तो हमारे भी सामने है, तीसरी मौला की रहनुमाई न होती तो मुश्किल से सोच पाते शायद। एक वो है जो दुनिया की किसी चीज को अपनी जिंदगी का मकसद बनाए, दौलत कमाना है, घर बनाना है, बेटी की शादी करना है, बेटे का एडमिशन कराना है, हुकूमत पे कब्जा करना है, इलेक्शन लड़ना है, हजारों चीजें इस इंसान की जिंदगी में हैं जिन्हें वो अपनी जिंदगी में निशाना बना के जिंदगी बसर करता है। क़ल्बुन मशगूलुन बिद्दुनिया, वो इंसान है जिसके दिल पर फिक्र दुनिया कब्जा किए हुए है। सुबह से शाम तक कोई ना कोई उसकी जिंदगी का निशाना है और उसके पेश नजर दुनिया का कोई काम है। लेकिन इससे आगे एक मंजिल और है, क़ल्बुन मशगूलुन बिल-उक़बा। इमाम ने फरमाया इंसानों की एक किस्म वो है कि जो सिर्फ दुनिया को मकसद हयात बना के नहीं जीते बल्कि उनके पेश नजर आखिरत भी होती है। दुनिया के कामों ही को जरिए आखिरत बनाएगा इंसान। मैं इब्तिदाई में आप हज़रात की खिदमत में किसी मजलिस में अर्ज कर चुका हूँ कि अल्लाह ने हमारी जिंदगी का निज़ाम ही ऐसा बनाया है कि यहाँ हमारी जिंदगी के काम होते रहते हैं और वही जिंदगी के काम आखिरत के काम बनते रहते हैं। कुछ अलग से नहीं है कि ये करो तो दुनिया का काम होने वाला है, वो करो तो आखिरत का काम होने वाला है। ज्यादातर जिंदगी के मामला ऐसे हैं कि दुनिया का काम भी होता रहता है और वही आखिरत का काम भी बनता रहता है। तो इंसान दुनिया से आगे बढ़ के फिक्र आखिरत लेके जीने लगे और इस निगाह से जिंदगी बसर करने लगे, ये मुझे करना है इससे जन्नत मिलेगी, ये नहीं करना है इससे जहन्नम पे डर पैदा होगा। ये दूसरी किस्म इंसान की। लेकिन एक तीसरी किस्म की तरफ इमाम ने इशारा फरमाया है, वह क़ल्बुन मशगूलुन बिल मौला। वो इंसानी दिल जिस पर न फिक्र दुनिया का कब्जा है, न वो आखिरत के लिए जीता है, न वो जन्नतों के लिए इबादत कर रहा है, वो न जहन्नम के खौफ से इबादत कर रहा है, बल्कि उसके दिल पर मौला की रिजा का कब्जा है। क़ल्बुन मशगूलुन बिल मौला, इसके दिलो दिमाग पे हर वक्त एक तसव्वुर रहता है, मेरा मौला किस बात पे राजी होगा, मेरा मालिक किस बात पे राजी होगा, मेरा राज़िक़ किस बात पे राजी होगा, किस बात पे नाराज होगा। तो 3 किस्में हैं दिलों की। जिंदगी बसर करने के 3 तरह के लोग हो सकते हैं, या सिर्फ दुनिया को हदफ बना के, या आखिरत को हदफ बना के, या रज़ाए परवरदिगार को अपनी जिंदगी का हदफ बना के। अब इन तीनों किस्मों के बारे में जो हमारी सोच है वो क्या है, माशरे में, सोसाइटी में जो हमने देखा, हमने जो पाया है वो ये पाया है कि अगर हमारे दरमियान कोई आदमी आखिरत को पेश नजर रख के जीना शुरू कर दे, ये हलाल है इसलिए मैं कारोबार करूंगा, ये हराम है इसलिए नहीं करूंगा, ये जॉब जायज है इसलिए मुझे करना है, ये जॉब नाजायज है इसलिए मुझे ये जॉब नहीं करना है, मैं ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा, ये पहनूंगा ये नहीं पहनूंगा, फिक्र आखिरत लेके जी रहा है कि इससे जहन्नम से बचना है, मुझे जन्नत जाना है, ये नमाज पढ़ूंगा, ये रोजा रखूंगा, अच्छे काम करूंगा, मुझे जन्नत जाना है। दीन की पाबंदी करके जब आदमी जीने की राह पर चलने लगता है तो खुद हमारे ही सोसाइटी और हमारे ही माशरे के अंदर लोग कहते हैं आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, आप हलाल और हराम का
ख्याल रख के जिएंगे, ना आप तिजारत में कामयाब हो सकते हैं, ना आप नौकरी में तरक्की कर सकते हैं, ना आप सियासत में अच्छी जिंदगी और कामयाबी तक जा सकते हैं। इसलिए कि आप हुक्म खुदा को सामने रख के ये हलाल है, ये हराम है, ये सही है, ये गलत है, ये जन्नत ले जाएगा, ये जन्नत पहुंचाएगा, इस तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं, आप नाकाम होने वाले हैं। ये आम तौर पर हमारे तसव्वुरात हैं, मगर इमाम इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई क्या फरमा रहे हैं? फरमाया 3 किस्में हैं। फिक्र दुनिया लेके जीने वाला एक, फिक्र आखिरत लेके जीने वाला दूसरा इंसान, और फिक्र रज़ाए परवरदिगार लेके जीने वाला तीसरा इंसान। इमाम का वादा क्या है? इमाम हमसे क्या कह रहे हैं? इमाम ने फरमाया अम्मल कल्बुल मशगूलो बिद्दुनिया फलहु शिद्दतु वर्रखा। जो सारी जिंदगी फिक्र दुनिया लेके जीता है, उसकी जिंदगी का कुल खुलासा क्या है? इमाम के अल्फाज में फरमाया, इमाम ने फरमाया अम्मल कल्बुल मशगूलो बिद्दुनिया फलहु शिद्दतु वर्रखा। जो सारी जिंदगी सिर्फ दुनिया को अपनी जिंदगी का निशाना बना के जीता है, उसकी जिंदगी का कुल निचोड़ और खुलासा यह है कि उसकी जिंदगी में कभी सहूलतें आ जाती हैं और कभी दुश्वारियां आ जाती हैं। इसके अलावा इसकी जिंदगी इससे आगे नहीं बढ़ती। कभी आराम है, कभी तकलीफ है, कभी बीमारी है, कभी सेहत है, कभी खुशी है, कभी गम है। इससे आगे उसकी जिंदगी नहीं बढ़ती। कभी इख्तिदार की कुर्सी के पर जाके बैठता है, कभी जेल में दिखाई देता है, कभी मिलियनर हो जाता है, कभी बैंकरप्ट हो जाता है, कभी हाथ में इतनी ताकत है, बदन में इतनी कुव्वत है कि पूरा माहौल, पूरा खानदान, पूरा मोहल्ला इसके जोर से डरता है, और कभी इसका हश्र होता है कि एक लुक़मा उठा के अपने मुंह तक नहीं पहुंचा सकता। कभी इसकी जबान इतनी तेज चलती है कि पूरी दुनिया इससे डरती है, और कभी इतनी लुकनत इसकी जबान में आ जाती है कि एक गिलास पानी मांगने के लायक नहीं रह जाता है। तो जो दुनिया की फिक्र लेके जीते, इमाम उनकी जिंदगी का खुलासा इन लफ्जों में बता रहे हैं, फलहु शिद्दतु वर्रखा। उसकी जिंदगी का कुल खुलासा यह है, कभी सख्ती, कभी नरमी, कभी आराम, कभी तकलीफ, इससे आगे कुछ नहीं। मगर अम्मल कल्बुल मशगूलो बिल उक़बा, मेरे मुखातब, मेरे सामने वो हजरात हैं जो ईमान वाले हैं, मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा हूं। इस वक्त दुनिया में कामयाब होने के लिए बुनियादी तौर पर मौलाना कह तो ठीक रहे, मगर इसके बगैर गाड़ी नहीं चलती। मौलाना आपकी बात तो सही, हालांकि मौलाना की बात हरगिज़ नहीं है। अगर मौलाना अपनी बात कहे तो उसे दीवार पे तो मारना कम है, बात कुचल के फेंक दीजिए, इसलिए कि उसकी कोई कीमत नहीं है। मगर दीन की जब बात होती है तो लोग ऐसे ही जुमले बोलने लगते हैं। अभी एक साहब मुझसे गुफ्तगू करने लगे, कहने लगे मौलाना वो कारोबार होते हैं, मुख्तलिफ चीजें बेचना पड़ती हैं, जिसमें कहीं हराम मिला हुआ, कहीं कुछ। में समझ गया क्या बात है? कह रहे लाठी का टिकट क्या है, इसमें क्या करना? तो मैंने कहा भाई मेरे मालूमात के मुताबिक ऐसी चीजें नहीं, हम खरीद फरोख्त नहीं कर सकते उनकी। कहने इसका मतलब आपके पास मगरिबी दुनिया में रहने वालों की जिंदगी के मसाइल के हल नहीं है। मैंने कहा मेरी औकात ही क्या है, मेरी क्या औकात है? अब जाहिर है उनकी मर्जी जवाब दे दूं कि सब मैं, मौला ने फरमाया है कि बड़ा बेवकूफ है वो, बेवकूफ है वो जो अपनी दुनिया के लिए अपनी आखिरत बर्बाद करे। बेवकूफ है वो जो अपनी दुनिया के लिए अपनी आखिरत बर्बाद करे, और उससे बड़ा बेवकूफ वो है जो दूसरे की दुनिया के लिए अपनी आखिरत बर्बाद करे। तो मैं बड़ा बेवकूफ बनना चाहता हूँ। हमारे दरमियान एक तरह की फिक्र है कि अगर हमने दीन का लिहाज रख के जिंदगी बसर की और हिदायत दीन की रोशनी में जिंदगी बसर करना शुरू की, हालांकि अगर हम ये तय कर लें कि हमारी जिंदगी सिर्फ दुनिया की जिंदगी नहीं, आखिरत की जिंदगी की, और जिंदगी का बहुत छोटा सा हिस्सा दुनिया का है, और जिंदगी का न जाने कितना बड़ा हम, बल्कि न मिटने वाला हिस्सा। भाई छोटा बड़ा हो सकता है कि एक जनाब आदम के दौर में पैदा हुआ, हम आज पैदा हुए, हमारे बाद क़यामत तक लोग आते रहे, तो माजी के लिहाज से तो हमारी जिंदगियों के फासले छोटे बड़े हैं,
लेकिन मुस्तकबिल के लिहाज से जब आखिरत में मुंतकिल हो गए तो अब सबकी जिंदगी हमेशा रह जाने वाली जिंदगी है। तो दुनिया की छोटी सी जिंदगी है, आखिरत की बड़ी नहीं, न मिटने वाली जिंदगी। अगर आदमी ये तय कर ले कि मैं इस दुनिया में मुझे तकलीफ बर्दाश्त नहीं है, तो जब इस छोटी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं है, जहां मिट जाएगी जिंदगी, जहां अगर तकलीफ नहीं खत्म होगी तो हम ही खत्म हो जाएंगे। अगर यहां हम अपनी तकलीफों से बच के राहत की तलाश करना चाहते हैं तो जो न मिटने वाली जिंदगी है वहां के बारे में हमें क्या करना चाहिए। मेरे सामने सब साहिबान दीन और फिक्र दीन रखने वाले अफराद तशरीफ फरमा है, लिहाजा मैं एक जुमला और आपकी खिदमत में कह देना चाहता हूँ। रसूल अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमला फरमाया है कि तुम्हारी जिंदगी में कभी न कभी वो मंजिल आएगी कि तुम्हें फैसला लेना पड़ेगा, दुनिया बचाए कि आखिरत बचाए। हमेशा दुनिया बचा ले जाओ ये नहीं होगा, कभी न कभी वो वक्त जिंदगी में आएगा कि फैसला लेना पड़ेगा कि दुनिया बचाए कि आखिरत बचाए। पैगंबर फरमाते हैं मेरी निगाह में इस मौके पर हकदार बचाने की कौन है? आखिरत हकदार है। दुनिया का नुकसान होता है हो जाने दो, मगर आखिरत का नुकसान न होने दो। ये मेयार मुसलमान के लिए, मोमिन के लिए दिया है। मौला क्या वादा कर रहे हैं? कामल कल्बुल मजबूलो बिन दुनिया, जो दुनिया के लिए जिंदगी बसर कर रहा उसकी जिंदगी का खुलासा ये है कि जिंदगी में सख्ती है या नरमी है। अभी आप जो इस नौजवान से तकरीर सुन रहे थे उसने मेरी 10 दिन की तकरीर सुन के आगे 2 दिन के लिए मेहनत की है, सब्र की ताकीद आपको की ताकि आप पे कुव्वत सब्र बरकरार है। कम से कम आपको सब्र का सवाब तो मिलेगा ही मेरी वजह से। एक्सप्लोर भेजिए। अम्मा कल्बुल मशगूलो बिल उक़बा, दुनिया कुछ कहे, दुनिया वाले कुछ कहे, लेकिन इमाम और इमाम सादिक उनका जुमला सुनिए। इमाम कहते हैं अम्मल कल्बुल मशगूलो बिल उक़बा फलहुद दुनिया वल उक़बा, जो फिक्र आखिरत लेके जिएगा ये न समझो कि वो महरूम में दुनिया हो जाएगा, ये न सोचना कि महरूम में दुनिया हो जाएगा। फलहुद दुनिया वल उक़बा, उसे दुनिया भी मिलेगी उसे आखिरत भी मिलेगी। मगर इमाम हम ईमान वालों को इससे ऊपर ले जाना चाहते हैं हिदायत कुरान की रोशनी में। इमाम क्या फरमाते हैं? अम्मल कल्बुल मशगूलो बिल मौला, लेकिन जो आखिरत जन्नत और जहन्नम को भी निशाना न बनाए, जहन्नम से बचना है जन्नत जाना है, जहन्नम से बचना है जन्नत जाना है, नहीं, इससे ऊपर उठे मुझे तो जिंदगी इसलिए बसर करना है, इस मेयार पर बसर करना है कि मेरा मालिक किस बात में मुझसे राजी होगा वो मुझे करना है, और किस बात में मुझसे नाराज होगा उससे मुझे अपने आप को बचाना है। जब इस मेयार पे अपनी फिक्र को ले आए, बोलने से पहले देख लें, कहने से पहले देख लें, सुनने से पहले देख लें, खाने से पहले देख लें, रजा कहाँ है, नाराजगी कहाँ है। तो अब सुनिए इमाम क्या वादा करते हैं? अम्मल कल्बुल मशगूल बिल मौला फलहुद दुनिया वल उक़बा वल मौला, जो फिक्र मौला लेके जिंदगी बसर करेगा उसे दुनिया भी मिलेगी, उसे आखिरत भी मिलेगी, उसे मौला भी मिल जाएगा। इमाम की यह हिदायत कुरान करीम की इरशाद की रोशनी में है जिसमें परवरदिगार आलम ऐलान करता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअदल्लाहुल मुमिनीना वल मुमिनात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति अदन व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। मालिक कहता है कि अल्लाह का वादा है मोमिनीन और मोमिनात से, मोमिनीन और मोमिनात से अल्लाह का वादा है, कहेगा उनको जज़ा के तौर पर जन्नतें देगा जिनकी जमीनों में नहरें जारी होंगी, और आला क्वालिटी की जन्नतें जो जन्नतें अदन है उनमें रहने के पाको पाकीज़ा घर देगा। कुरान मजीद की आयत कोई रवायत नहीं है, अल्लाह का वादा है। वह मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति अदन, तो तुम्हें जन्नत देगा, अल्लाह का वादा है। तो सिर्फ शर्त यह है कि तुम ईमान के साथ जिंदगी बसर करो और ईमान के साथ दुनिया से उठो। लेकिन उसके बाद जन्नत देने का वादा करके परवरदिगार आलम आगे कहता है रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, तुम अपने को जन्नत के लायक अगर समझ भी लो
तो ये न समझ लेना कि सब पा लिया, नहीं, रिजवानुम मिनल्लाह अकबर, अल्लाह की रजा इससे भी बड़ी है। वज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, और असल बड़ी कामयाबी जन्नत पाना नहीं है, बड़ी कामयाबी रज़ाए परवरदिगार का हासिल कर लेना। और आपसे बेहतर कौन समझेगा जन्नत के हकदार बन जाने और रजा पाने वाले में। जन्नत जाने वाला खुद जन्नत जा सकता है, किसी को ले नहीं जा सकता। रज़ाए परवरदिगार की मंजिल तक पहुंच जाने वाला जन्नत जाता भी है, जन्नत लेके भी जाता है। हमारी और आपकी जिंदगी में जाहिर है कि अगर हकीकत ये है कि अगर हम इतनी ऊंचाई पे भी अपने को पहुंचा ले जाए कि अपने को जन्नत के लायक बना सके, तो हम तो बहरहाल उसे कामयाबी करा देंगे। मगर मालिक इससे ऊपर ले जाना चाहता है, इस रजा के लिए जिंदगी बसर करने के। कम से कम मैंने पिछले साल आपके हाथ खिदमत में हाजिर हुआ था, मैंने जुमला कहा था कि ऊंचे निशाने हमेशा अपना रखने चाहिए। तालीम के दौर में हमारा असातिज़ा हमसे कहते थे कि अगर पूरे मदरसे में अव्वल आना है तो पूरे शहर में जितने मदरसे हैं उनमें अव्वल आने की कोशिश करो। अगर अपने क्लास में फर्स्ट पोजीशन लाना है तो क्लास में फर्स्ट पोजीशन लाने का निशाना ना बनाओ, पूरे मदरसे और कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन लाने का निशाना बनाओ। आदमी निशाने ऊंचे रखेगा तब कुछ ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। मोमिन की जिंदगी का असली निशाना रज़ाए परवरदिगार होना चाहिए। मासूमीन की हिदायत भी है और इरशादात भी इस सिलसिले में यही निशाने जिंदगी आदमी रज़ाए परवरदिगार हो। हम आप जन्नत क्यों चाहते हैं? हमने जन्नत के बारे में जो सुना है उनमें से सुना क्या है, सच्चाई है, हकीकत है, रवायात में है, आयात में भी है कि जन्नत उस जगह का नाम है जहां जन्नती जो चाहेगा। दुनिया में हमने तजर्बा किया है, आदमी यहाँ जो कुछ भी चाहे लाख कोशिश कर डाले, लेकिन इस दुनिया में आदमी की हर ख्वाहिश और हर तमन्ना पूरी कितनी कामयाब क्यों ना हो, कितना ही कामयाब क्यों ना हो, जिंदगी की हर फील्ड और हर शोबे में कामयाब हो। दुनिया के कामयाब तरीन इंसानों से भी जाके पूछ लिया कि क्या तुम्हारी हर तमन्ना, हर ख्वाहिश, हर आरज़ू इस दुनिया में पूरी हो गई? यार आदमी कहे नहीं, जो पूरी हुई बहुत थोड़ी सी, जो नहीं पूरी हुई बहुत ज्यादा। तो इस दुनिया की एक हकीकत यह है कि यहाँ किसी भी इंसान की सारी आरज़ुएं, तमन्नाएं पूरी नहीं होती। जन्नत की खुसूसियतों में से खुसूसियत क्या है? जन्नत उस जगह का नाम है जहां जन्नती की हर ख्वाहिश, हर मर्जी, हर आरज़ू, हर तमन्ना पूरी हो जाएगी। अब जाहिर है कि ऐसी जगह अगर नसीब हो तो आदमी को दरकार है, मगर रज़ाए परवरदिगार की अजमत को पहचानिए। एक जुमला है जो मैं आपकी खिदमत में करना चाहता हूँ, वो भी मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। मौला ने अगर जब मुहर्रमी मजमा हमारे दरमियान तो उस वक्त रिवायत पढ़ती होती मैंने ज्यादा अच्छा होता, लेकिन चलिए आप भी सुनी लीजिए, सहारा ही मिलेगा आपके लिए भी। देखिए हम लोग ये जो मरकज बनाए हैं, सेंटर्स बनाए हैं, मैंने दूसरी रिवायत पढ़ी थी, इनमें आने की कीमत पहचाने। मौला फरमाते हैं जन्नत कितनी ऊंची जगह जहां हर तमन्ना, हर ख्वाहिश, हर आरज़ू पूरी होगी जन्नती की। अब उसके बाद बज़ाहिर तो इससे ऊंची कोई जगह है नहीं, मगर मौला का जुमला सुनिए, इन्नल जुलूसा बिल जामे खैरुल ली मिनल जुलूसे बिल जन्नह। मौला फरमाते हैं कि जन्नत में बैठने से बेहतर मेरे लिए मस्जिद में बैठना। मौला का इरशाद ही काफी हमारे लिए दलील मानने का कारण नहीं है, मगर मौला ने दलील भी दी है। इन्नल जुलूसा बिल जामे खैरुल ली मिनल जुलूसे बिल जन्नह, मेरे लिए मस्जिद में बैठना जन्नत में बैठने से बेहतर है। क्यों? लिअन्न बिल जन्नति रज़ा नफ्सी व बिल जामे रज़ा रब्बी, इसलिए कि जन्नत में मेरी मर्जी पूरी होगी और मस्जिद में अल्लाह की मर्जी पूरी हो जाएगी। एक सलावत भेजे मोहम्मद मैं बहुत मुख्तसर सी गुफ्तगू आज करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। साहिबान शऊर खालिस तशरीफ फरमा, इसलिए मैंने ये मौजू मुंतखब किया। मेरे अजीजों, जो हम दीन के लिए जज्बा रखते हैं, जो दीन की फिक्र में जिंदगी जीना चाहते हैं, हमारी जिंदगी का निशाना रज़ाए परवरदिगार को होना चाहिए।
उससे कम किसी और चीज को नहीं। और हम जो कुछ चाहते हैं, राहत, सुकून, नाम, आराम, इन सब तक पहुंचने का वसीला उस रजा, उसकी रजा हासिल होने के बाद आदमी इनका मोहताज नहीं रहता है। रवायात इसकी, सीरतें इसकी गवाह है। मैंने ये जुमले आपकी खिदमत में क्यों कहे हैं? हम आप जिस माहौल में पले बढ़े, जहाँ पैदा हुए, जहाँ रहे हैं, वहां से बहुत सी चीजें हमारी फितरत में, आदत में, जिंदगी बसर करने के सलीके में, इन चीजों में शामिल हो जाती है। हम आप अकेले रहने के लिए नहीं पैदा हुए। मैंने बार बार ये बात कही, हम लोगों के दरमियान उनसे हमारे रिश्ते हैं और हमारी जिंदगी लोगों के दरमियान उनके जरिए चलती है। हमारे बीवी बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, फिर हमारे और रिश्तेदार, फिर हमारे पड़ोसी, फिर हमारे हमवतन, फिर हमारे कारोबार के दोस्त, फिर हमारे अहबाब। इंसानों के दरमियान हम रहते हैं और सारे इंसानों से हमारे किसी न किसी तरह के रिश्ते हैं। इन रिश्तों की कीमत है, इन रिश्तों की हिफाजत की जिम्मेदारी भी मदद ने हमारे ऊपर रखी है और इन रिश्तों की हिफाजत करके ही अल्लाह से बंदगी के रिश्ते को बचाया जा सकता है। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं तफसील में जाऊं। मैंने ये जुमला कहा है। ये बताइए, एक नमाज पढ़ने के लिए आपको जो हुक्म दिया जाता है, जो अल्लाह से रिश्ता कायम करना है, तो उसके लिए वुजू से लेकर नमाज आने तक कितनी जगह आप पढ़ते हैं? पानी गस्बी ना हो, लोटा गस्बी ना हो, उस जमीन पे जहां वुजू कर रहे हो वो गस्बी ना हो, वो मुसल्ला गस्बी ना हो, वो कपड़े जो तुम पहने हो वो गस्बी ना हो। यानी इतनी जगह जब हमने अल्लाह के बंदों के हक अदा कर लिए, तब एक अल्लाह का हक अदा करते हैं। तो इन रिश्तों की हिफाजत उसने हमारे जिम्मे रखी है। मगर कभी कभी होता यह है कि इन रिश्तों की हिफाजत में लग के हम उस असली रिश्ते को भूल जाते हैं। हम जिंदगी के जितने फैसले करते हैं, किसी न किसी की पसंद और नापसंद के को पेश नजर रख के जिंदगी बसर करते हैं। क्यों? बच्चे, औलाद, माँ बाप, बीवी, भाई बहन, रिश्तेदार, अजीज, पड़ोसी, सबका ख्याल रख के जीते हैं। क्यों? भाई या ये उन लोगों में है जो हम तक हमारी जिंदगी की जरूरतें और नेमतें पहुंचाने का जरिया, या जो हमें मुश्किलात, दुश्वारियां और मुसीबतें जिंदगी में पेश आती हैं उनसे बचाने का जरिया। जिन इंसानों के दरमियान हम आप जी रहे हैं, अगर इनसे अलग हो जाएं तो कितनी नेमतों से हम लाख कोशिश करके महरूम होंगे। ये कपड़े कौन सी के देगा? हमें तो नहीं आता सीखा। मिसाल के तौर पर खाना कौन पका के देगा? अब यहां पे नहीं कह सकते कि हमें तो नहीं आता पका। मेरे अजीजों, चूंकि मैं समेट के जल्दी से कहना चाहता हूं, इंसान मुसीबतों से बच के नेमतों के दरमियान जीना चाहता है और इन मुसीबतों से बचने का जरिया ये रिश्ते बनते हैं, ये ताल्लुकात बनते हैं, ये दूसरी मखलूक खुदा इंसान बनते हैं। इन नेमतों के लाने का जरिया भी ये बनते हैं। चूंकि ये जरिया है नेमतें लाने का, मुसीबतों से बचाने का, लिहाजा हमें इनका ख्याल करके तो जीना ही पड़ेगा। तो वह एक चीज और बढ़ा लीजिए कि जब जरिए जो नेमतें लाने का है और जो मुसीबतों से बचाने का है, जब उनका ख्याल रख के जीना पड़ता है, तो जो नेमतों का देने वाला असल है और जो मुसीबतों से असले बचाने वाला है, उसकी रजा का ख्याल रखे बगैर इंसान जिंदगी बसर करे तो कैसे कर सकता है? मासूमीन ने अपनी सीरत के जरिए हमें ये सबक दिया है। बस आखिरी बात इस सिलसिले की और उसके बाद चंद फिक्रे वसाइल के। मासूमीन अलैहिस्सलाम ने हमें इस जिंदगी में सबक दिया है। आपने बार बार मजालिस में सुना है, मशहूर तरीन वाकयात में है कि पैगंबर खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी जनाब जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से कहा था कि तुम्हें अल्लाह जिंदगी देगा, लंबी जिंदगी मिलेगी और जिंदा रहोगे और मेरे बेटे मोहम्मद इब्न अली इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब से मुलाकात करोगे। और जब उनसे मिलना, पांचवें इमाम से मुलाकात की खबर दी थी रसूलुल्लाह ने, और कहा था कि जब उनसे मिलना तो हमारा सलाम कहना। जनाब जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से इमाम की मुलाकात हुई है। उनकी जिंदगी के आखिरी दिनों में जनाब जाबिर की, और उसके कुछ दिनों के बाद उनका इंतकाल हो गया। उसी दौरान का मुलाकात के पहली मुलाकात या उसके बाद कब का वाकया मैं नहीं कह सकता, लेकिन जनाब जाबिर ने लंबी उम्र पाई है और शायद असहाब मासूमीन में कोई सहाबी ऐसा ढूंढे न मिले जिसने जिसे इतनी मासूमों की जिंदगियां देखने का मौका मिला हो।
पैगंबर खुदा से 5वें इमाम तक का मतलब हुआ 7 मासूमीन, 14 में से 7 मासूमीन की जिंदगी देखने को उन्हें मौका मिला। ये जो हदीस किस्सा हमारे दरमियान पहुंची है, ये बिनते रसूल ने किससे बयान किया? वाक़या जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह है अंसारी से। 7 मासूमीन से जिन्होंने जिंदगी के सबक सीखे हैं, बुजुर्गी की मंजिलों में है, जिंदगी के आखिरी दिन है। इमाम ने उनसे कहा है, हमारे नाना के सहाबी जाबिर, आपने इतनी लंबी उम्र पाई है, इतनी तुलानी उम्र पाई है, अब आप अपने आप को ईमान और मारिफत की किस मंजिल पे पाते हैं? इतनी लंबी उम्र, जिंदगी के तजर्बे, मुख्तलिफ जिंदगी के दौर, और उसके बाद इतने इमामों के साथ जिंदगी बसर करने का मौका, और वफादारी की जिंदगी, दुनियादारी की जिंदगी बसर करे कि मुनाफिकत की राह पे नहीं गए, कभी नहीं छोड़ा, कभी ईमान से नहीं हटे, बाईमान जिंदगी हमेशा बसर की। उस दौर में जब पैगंबर की वफात के बाद दुनिया की अक्सरियत मौलानी को छोड़ के भेजी, उस वक्त भी वाबस्ता रहे। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम तन्हाइयों की जिंदगी में तब भी वाबस्ता रहे, इंतहाई मुखलिस असहाब में से, और इतने मोतबर कि पैगंबर अपना पैगाम्बर बना रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं कि तुम मेरा पैगाम पहुंचाना, इतने मोतबर। इस अजीम शख्सियत से इमाम सवाल कर रहे हैं ताकि पैगाम हम तक पहुंचाया जा सके। जाबिर, नाना के सहाबी, तुमने इतनी लंबी उम्र पाई है, आपने ये बताइए अपने आप को ईमान और मारिफत की किस मंजिल पे पाते हैं? तो जनाब जाबिर ने फरमाया कि मैं उस मंजिल पे पहुंच गया हूँ ईमान की, और मारिफत परवरदिगार की उस मंजिल पे पहुंच गया हूँ, और मारिफत नफ्स की उस मंजिल पे पहुंच गया हूँ। उनने 2-3 फिक्रे कहे, या मुझे दौलत के मुकाबले में गुर्बत अच्छी लगती है, सेहत के मुकाबले में मुझे बीमारी अच्छी लगती है, ताकत के मुकाबले में मुझे कमजोरी अच्छी लगती है। देखिए, इंसानी फितरत ये नहीं कहती, और दीन भी ये नहीं कहता। थोड़ा सा रुक जाइए, मैंने आपको खिदमत में कहा था कि इस्लाम किसी को फकीर नहीं देखना चाहता। फितरत में हमें दौलत अच्छी लगती है, हमें गुर्बत नहीं पसंद है, तंगदस्ती किसी को नहीं पसंद, मजहब भी नहीं कहता। मैंने जुमला आपकी खिदमत में कहा था, ज़कात वाजिब करने का मतलब ही है कि आदमी पैदावार करे, करने का मतलब है कि इतना कमाए के बचाए, हज का मतलब है कि साहब हैसियत बने, कर्ज देने में सवाब का मतलब है कि इतना हो कि कर्ज दे सके। तो मेरे अजीजों, जो आम तौर पर इंसानी मिजाज है, उससे हट के जनाब जाबिर बात करें, मतलब कोई दलील तो उनके पास होगी ना। क्या मुझे सेहत के मुकाबले में बीमारी अच्छी लगती है? ये भी न मिजाज इंसानी के मुताबिक बात है, और न मजहब कहता। मजहब सेहत की हिफाजत का इतना जिम्मेदार है कि अगर मजहब कहता है अगर सेहत बिगड़ने लगे तो हम अपने हकाम को सेहत की हिफाजत के लिए बदल दें। वुजू को होता है मुंह से बदल देता है, गुस्ल को होता है मुंह से बदल देता है, रोजा वाजिब हो बीमारी का सबब बने हराम बना देता है। तो मजहब तो सेहत की हिफाजत की बात करता है, ताकत के बजाय कमजोरी, ये भी मजहब का मिजाज है, फितरत इंसानी का। इज्जत के बजाय रुसवाई। जनाब जाबिर ने बात कही और उसके बाद उसकी वजह बताई। कहा मुझे ये सब इसलिए अच्छा लगता है कि मैंने जिंदगी में जो तजर्बे किए हैं, उनसे मैंने जो सीखा है वो ये कि जब आदमी को अल्लाह से दी हुई नेमतों की फरावानी होती है तो कभी कभी नेमतों की फरावानी के नतीजे में इंसान अपने रब को भूल जाता है, और जब तंगदस्ती का शिकार होता है तो फिर पलट के आता है अपने मालिक की तरफ। तो मेरा तजर्बा मुझे कहता है कि दौलत के मुकाबले में गुर्बत की आदत खुदा पड़ गई मेरी, इसलिए मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है। सेहत में अल्लाह ताकत और सेहत होती है, तो कभी इसी ताकत और सेहत के नतीजे में इंसान फिरौन बन जाता है, लेकिन जब ये सेहत जाती है, जब ये ताकत जाती है, जब कमजोरी की तरफ आता है तो फिर आवाज देता है, तू जिसे चाहे शिफा दे, जिसे चाहे बीमार डाल दे। तो बीमारी में आने खुदा पड़ जाती, इसलिए मुझे अच्छी लगती है। इज्जत मुआशरे में मिल जाए तो कभी कभी आदमी फिरौन बन जाता है, लेकिन जिल्लतों का शिकार होता है तो फिर फरियाद करता तो इज्जो मंतशा तो जिल्लो मंतशा, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। तो चूंकि जब जिल्लतों का शिकार होता है इंसान, कभी कभी तो याद खुदा पड़ जाती, इसकी मुझे अच्छी लगती है। जाबिर ने अपनी बात भी कही, अपनी दलील भी दी। दलील सुनने के बाद लगा इंतहाई माकूल बात जनाब जाबिर कह रहे हैं, लेकिन ये बात थी उम्मत की बात। अब सुनिए इमामत का नजरिया। जनाब जाबिर अपनी बात कह चुके, मुझे दौलत के मुकाबले में गुर्बत, सेहत के मुकाबले में बीमारी, इज्जत के मुकाबले में रुसवाई पसंद है। और क्यों पसंद है? उनका तजुर्बा कह रहा है याद खुदा बढ़ा दी थी इसलिए मुझे पसंद है। उनकी बात भी, उनकी दलील भी
मगर उसके बाद इमाम ने कहा मगर ए जाबिर हम अहले बैत तो ये नहीं कहते, हम अहले बैत तो ये नहीं कहते। जाबिर चौंके, जाबिर लर्जे, कहा मौला फिर आप अहले बैत क्या कहते हैं? हम कौन होते हैं आपसे अलग जाने वाले? हम कौन होते हैं आपसे अलग जाने वाले? सुनिए जिसके लिए मैंने आपका तवक्क लिया है। इमाम ने फरमाया जाबिर हम ये नहीं कहते कि हमें दौलत पसंद है कि गुर्बत, हम ये नहीं कहते कि हमें सेहत पसंद है कि बीमारी, हम ये नहीं कहते कि हमें इज्जत पसंद है कि रुसवाई। जाबिर हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि हमें ये पसंद है और ये नापसंद है। का जाबिर हम कौन होते हैं कहने वाले कि हमें ये पसंद और ये नापसंद। हम अहले बैत तो ये कहते हैं कि जो हमारे परवरदिगार को हमारे लिए पसंद है वो हमें पसंद है, और जो हमारे मालिक को हमारे लिए नापसंद है वो हमें नापसंद है। तो मेयार जिंदगी मालिक ने क्या दिया है कि हयात बसर, जिंदगी बसर करने का एक तरीका तो वह ये मुअय्यन करना है कि दुनिया क्या कहती है, माहौल क्या कह रहा है, आदतें क्या कह रही है, रस्म रवाज क्या कह रहे हैं, उस पर नजर न डालो। कदम उठाओ तो देखो, आंखें खोलो तो देखो, जबान चलाओ तो देखो, फैसला करो तो देखो। जो हमारे मालिक को पसंद है हमें वो राह अपनाना है, और जो हमारे मालिक को ना पसंद है उस राह से हमें बचाना है अपने आप को, चाहे जितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़े, चाहे जितनी सख्तियों का सामना करना पड़े। यही पैगाम करबला का पैगाम है। रज़ाए परवरदिगार पेश नजर है तो फिर जिंदगी में जो दुश्वारियां भी आती हैं उनका मुकाबला किया जाएगा। आज 11 मुहर्रम गुजरी। 11 मुहर्रम गुजरने का मतलब क्या है? 11 मुहर्रम गुजरने का मतलब यह है कि करबला के मैदान में यजीद के सिपाहियों के नजिस लाशें दफन किए गए, मगर हुसैन और हुसैन के लश्कर के ताहिर और मुतहर लाशें रेग करबला पर बेरो गोरो कफन पड़े हुए। पूरा दिन लश्कर यजीद की फौजियों ने अपनी लाशों को दफन किया, और 11 मुहर्रम का दिन भी उसी धूप और गर्मी में करबला के रेगिस्तान में गुजरा। मुझे तफसील तो कहीं पढ़ने नहीं मिली, लेकिन जो खैमे जल गए थे, जो खैमे जला दिए गए थे, फिर वो खैमे तो नहीं लगे। अहले हरम लुटे हुए अहले हरम पूरा दिन रेगे घर में करबला पे तशरीफ फरमा रहे हैं। यहाँ तक कि जब सूरज ढलने लगा तो काफिला चलने की तैयारी हुई। सैयद सज्जाद अपनी फूफी के पास तशरीफ फरमा थे। मरतबा देखा कि लश्कर यजीद से कुछ नाके निकल रहे हैं, कुछ ऊँट निकल रहे हैं, कुछ सवारियां लेके लोग आ रहे हैं। इमाम ने कहा फूफी अम्मा लगता है हमारी रवानगी का वक्त हो गया। कहा बेटा? कहा फूफी अम्मा इन नाकों पर न कजाबे हैं न हमारी हैं। कहा बेटा? देख। फूफी अम्मा ये जानवर आपस में कुछ बातें भी कर रहे हैं। कहा बेटा तुम इमाम वक्त हो, मुझसे बेहतर समझते हो। कहा फूफी अम्मा ये बातें कर रहे हैं कि हमने आज तक बहुत सी सवारियों के त्रिपुष्ट पे सवार किया है, मगर आज रसूल की बेटियां सवार होंगी, हुसैन और अली के घर वाले सवार होंगे, न कजाबे हैं न हमारी हैं। लिहाजा संभल संभल के चलना, ये बातें जानवर आपस में कर रहे हैं। शिमर बेकजावा सवारियों को लेकर नजदीक आया, आवाज दिया हम तुम्हें सवार कर दे। अली की शेरती बेटी उठ के खड़ी हो गई, तू दूर हट जा, तू दूर हट जा, हम खुद सवार हो जाएंगे, हम खुद अपने काफिले को सवार कर लेंगे। अल्लाह ने अली का रोब लहजे में दिया है, इलाही इंतजाम हुआ, जालिम हट गए, खुद से सवार हो जाओ। ज़ैनब आगे बढ़ी, ऊँटों को बिठाना शुरू किया, एक एक बीवी को आवाज देना शुरू की, आओ उम्मे कुलसूम मैं तुम्हें सवार करूं, आओ रात मैं तुम्हें सवार करूं। यहाँ तक कि वो वक्त आया कि ज़ैनब कुबरा ने कहा फिज़्ज़ा, मेरी माँ की कनीज़ फिज़्ज़ा, आओ मैं तुम्हें भी सवार कर दूं। फिज़्ज़ा ने हाथ जोड़े, शहजादी आप मुझे सवार करेंगी, आप मुझे सवार करेंगी तो कल मैं आपकी मदर गिरामी के सामने जाके जवाब क्या दूंगी। ज़ैनब ने कहा फिज़्ज़ा, जिस अम्मा का तुमने नाम लिया है उसी का वास्ता तुम्हें सवार करना पड़ेगा। फिज़्ज़ा को भी बातों पर रख के ज़ैनब कुबरा ने सवार किया। अब वो मंजर
پھر سے سامنے آ گیا کل عصر عاشور کے ہنگام جب حسین گھوڑے کے پاس آ کے کھڑے ہوئے تھے، داہنے بائیں دیکھا تھا، زینب سمجھ گئی تھی، بڑھ کے بازو پکڑ کے سوار کیا تھا، اب تیرا بھائی عباس نہیں ہے یا اکبر نہیں ہے، یہ بہن تجھے سوار کرے گی، مگر آج علی کی بیٹی اکیلی اونٹ کے کنارے کھڑی ہے، کون ہے جو آ کے زینب کا بازو پکڑ کے سوار کرے؟ شاید مقتل کا رخ کر کے آواز دی ہو، میرے لال اکبر، مدینے سے قافلہ نکلا تھا، تم نے نبی کو سوار کیا تھا، میرے شیر جیسے بھیا عباس، مدینے سے ہم چلے تھے، تم نے اپنی بہن کو سوار کیا تھا، آؤ آ کے اپنی بہن کو سوار کرو۔ اللہ صاحب رعد القدس لکھتے ہیں قافلہ تھوڑی دور چلا تھا، بچے اپنے ماں کی گود میں بیٹھے تھے کہ ایک مرتبہ ظالم آگے بڑھا اور قافلے کو روکا، اور اس کے بعد اس نے شمر بن ذوالجوشن نے کہا میں نے سنا ہے اس قافلے میں حسین کی ایک بچی ہے جس کا نام سکینہ ہے، حسین کے سینے پہ سونے والی بچی، وہ کہاں ہے؟ کسی نے بتایا وہ اپنی پھوپھی اپنی ماں کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ظالم آگے بڑھا، اونٹ کو بٹھایا، بچی کو گود سے چھینا اور ایک اونٹ کی پیٹھ پہ بٹھا دیا، اونٹ اٹھنے لگا، بچی لڑکھڑائی، آواز دی اماں بچا لو، ارے میری پھوپھی اماں بچا لو، ارے میرے بھیا مجھے بچا لو، اونٹ آگے بڑھ رہا ہے، چند برس کی 3-4 سال کی کمسن بچی بار بار ہنستی ہے، اتنے قدم اٹھ کے بڑھتے ہیں، اماں بچا لو، میری پھوپھی اماں بچا لو، میرے بھیا بچا لو۔ ایک مرتبہ ظالم نے پھر اونٹ کو روکا، میں سمجھا شاید اس کی کمسنی پر رحم آ گیا، اب بچی کو ماں کے حوالے کر دے گا، پھوپھی کے حوالے کر دے گا، مگر ایک اور آگے بڑھا، اونٹ کو بٹھا کے چنی سے بچی کو سینے کمر لے جایا، رسیوں سے جکڑ دیا، اب تو نہ گرے گی، اب تو نہ ڈرے گی، آئے منزلوں کے بعد ننھی بچی جب اونٹ سے اتاری گئی، سینہ زخمی، پسلیاں زخمی، خون میں ڈوبا ہوا چھٹا، یہ حسین کے سینے پر سونے کی صدا کی جاتی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم تقبل منا إنك